Srimati Sudhamurthy ji. Thank you, sir, giving me an opportunity. Children are our future, and we should develop our children in good value system, good education, sports, and many other activities. Akashat patitam toyam yatha gacchati sagaram. Every drop of water, maybe through cloud, through riverlet, or through river, goes to an ocean. So are the children. What we bring up, everything goes to their future. But I'm really worried about regulation, about the today's scenario. In modern days, social media has become very popular, and there are many, many advantages of social media, which I don't want to talk here, but I want to talk the other side of the social media. Many parents use their innocent children because they are not even aware what they are doing. They are exposed to different type of costumes, dress, commercialization, and put them on a social media so that they can have 10,000, 1 million, 500,000 followers. This will help them financially a lot for parents, I'm aware of it. But what happens to the child? The child will lose its innocence. The child doesn't give permission because the child is not aware of it. It will affect in a long range, it will affect the children's psychology. They will not learn how to do any activity, social activity or sports, even a good education. Children become a source of income to parents. And the social media, they take the advantage of social media. Now, a country like France, where there is a kind of regulation is there on children who are on the social media. You cannot expose them in a different costume. You cannot have, when they are taking bath, you can't take that picture because you do not know. Sometimes people with a bad set of mindset, they may use those photos for something else. And again, children, you should not bring them up only because they give money or their source of income. We are causing their blockage in their future. So I am requesting, social media is like a knife, I consider, sir. You can cut a fruit or you can kill a person. Use social media for betterment, but not using your children, the children influencer, mother influencer, and you can open it in social media. There are so many influencers without any regulation. I am requesting the government of India, and particularly in social media, to keep a regulation on this. For example, our government has done a fantastic work. You're regulating in the advertisement, children advertisement, children working or acting in film, all those things they have taken care and there are strict laws implemented. Whereas when it comes to social media, it is not done. And this is going to cause a great problem in future for our children. And it should be told to their parents also, there should be a restriction. There should be a way to use. Certain methodologies should not be used. Children cannot use certain kind of dress and dance or certain kind of dress, for the advertisement, because this is not the way how we can bring up next generation of our children. Thank you very much, sir, giving me an opportunity to talk on this subject, regulating the chat. Samik Bhattacharya. Thank you, sir. कोई मंदिर मस्जिद का लड़ाई नहीं, कोई हिंदू मुसलमान की विभाजन नहीं, लेकिन हुआ क्या था? मालदा जिला की पांडुआ में जीतू संथाल ने अपने जीवन की कुर्बानी दे दिया था ब्रिटिश गोलियों को सामने। उसका लक्ष्य सही था, आदिनाथ मंदिर को उन्होंने पुनरुद्धार करने के लिए लड़ाई लड़ा था, ये सन्यासी दल लेकर के। और आज क्या हो रहा है, ये हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है। J.D. Begler, एक मशहूर ओरिएंटलिस्ट, J.H. Ravenshaw, the collector of Malda, from 1865 to 1867, they have documented the different evidences जो वो हिंदू मंदिर होने का दावा था। नहीं, तो आज nothing will go on. सारे आर्किटेक्चर एविडेंस को मिटा दिया जा रहा है। मैडम प्लीज, सबे बारात के दिन, सबे बारात के दिन कोई आदिनाथ टेम्पल का सामने आज पत्थर फेंका जा रहा है गणेश जी का मूर्ति का ऊपर। गणेश जी को मूर्ति को शैतान का कहने वाला है, बोल रहे शैतान की मूर्ति है, तुमको जन्नत मिलेगा। कितना दिन चल सकते हैं? हम इतिहास को मिटा नहीं सकते, हम हमारे धरोहर को छोड़ नहीं सकते, हम हमारा संस्कृति बिरादर से मिटा नहीं सकते, लेकिन ये चल रहा है पश्चिम बंगाल पे।
अभी बाबरी मस्जिद का नींव डालने वाला है उधर, और वो आदिना मस्जिद नहीं है, वो आदिनाथ की मंदिर है। इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये ऐसा का डॉक्यूमेंट है, और उसको करने देना चाहिए। दैट शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ टिकेटेड मोन्यूमेंट, उसका ऊपर स्टडी होना चाहिए। उस सारे हिंदू एडिफिट्स, लोटस, जोनीपीठ, शिवलिंग, लक्ष्मी माँ के हस्त, वो सबको मिटा रहे हैं, उसको बंद करना चाहिए। हमें सरकार की पास एक गुजारिश है जो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। काटरा मस्जिद भी वही है, आदिनाथ टेम्पल भी वही है, ज्ञान बापी भी वही है। पूरा हिंदुस्तान की नजर मिटा घुमा रहे ये लोग। जो लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का बनाने का घोषणा किया एसी का पार्टी का विधायक, और हम लोग हिंदुस्तान में होने नहीं देंगे। ये बाबर और राम की लड़ाई नहीं है, ये भारत की धरोहर को, शशांक को, उस लुटेरा सुल्तान सिकंदर शाह को जो अत्याचार था पूरा मालदा जिला का ऊपर, जो पंडुआ का ऊपर, और जीतू संथाल की बलिदान अब मिटा नहीं सकते, और बाबरी मस्जिद बनाने का हिम्मत भी कोई नहीं कर सकते। जो होना था अनिल सुखदेवराव बोंडे, डॉक्टर अनिल सुखदेवराव बोंडे। सर धन्यवाद सभापति महोदय। इंडियन मेडिकल पार्लियामेंट्री फोरम ने एक स्ट्रोक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ली थी, उसमें सभी न्यूरो फिजिशियन को बुलाया था। अब उन्होंने कुछ सजेशंस जो दिए मैं रखना चाहता हूँ। भारत में स्ट्रोक की वजह से बहुत सारी मॉर्बिडिटी, विकलांगता और मॉर्टेलिटी भी होती है। हार्ट केयर सेंटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट पे अच्छे क्वालिटी के स्ट्रोक केयर सेंटर निर्माण करने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनके द्वारा आयुष्मान भारत और आयुष्मान योजना में सभी वृद्ध लोगों को फ्री हेल्थ सुविधा मिलती है, लेकिन एक स्ट्रोक के लिए प्रिवेंशन के लिए भी काम एनसीडीएस के माध्यम से होता है, नॉन कम्युनिकेबल हेल्थ डिसीजेस, ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल, डायबिटीज पे कंट्रोल, और कुछ हैबिट्स, स्मोकिंग, टोबैको कंजम्पशन, वो कंट्रोल में किए तो स्ट्रोक प्रिवेंशन हो सकता है। लेकिन स्ट्रोक में जो ब्लॉकेज के कारण होता है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, उसको इमीडिएटली अच्छे से सुविधा मिली, उसका ट्रांसपोर्टेशन, पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन विद इन आवर्स 6 आवर्स हुआ, तो वो क्लॉट डिजोल्व करने का थ्रोम्बोलिसिस और थ्रोम्बोक्टोमी, ये सभी जगह पे अच्छे से हो सकता है, और उसके वजह से विकलांगता रोकी जा सकती है। सर, इस स्ट्रोक के वजह से, विकलांगता के वजह से सोशली और इकोनॉमिकली वो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, और उसके वजह से ये स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल बढ़ाना और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेडिकेटेड स्ट्रोक यूनिट्स करना बहुत जरूरी है। उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, टेलीमेडिसिन का इनिशिएटिव भी ले सकते हैं, और जितने जल्दी से जल्दी पेशेंट को वहां तक पहुंचा सके तो उसको सुविधा अच्छी तरह से मिल सकती है। उसके बारे में जन जागरण करना वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूरो फिजिशियन जो है, न्यूरोलॉजिस्ट जो है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे अवेलेबल नहीं होते, लेकिन टेलीमेडिसिन के माध्यम से उनकी सलाह अच्छी तरह से ले सकती है। तो स्ट्रोक का रेट जो भारत में ज्यादा है और उसके वजह से विकलांगता भी बढ़ती है, और ओल्ड एज में सभी डिपेंडेंसी बढ़ती है, वह कंट्रोल करने के लिए अच्छे स्ट्रोक केयर सेंटर बनाए जाए, यह मैं रखता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। आपको धन्यवाद कि हम लोग का फोटो आया। श्री रविचंद्र वाडी राजू। I want to bring to the notice of this House 2 urgent issues that are affecting the daily lives of people in Hyderabad and Telangana. Sir, my BRS party leader KCRG has done tremendous work in turning Hyderabad into a truly global city. Sir, the first issue is metro rail and urban transport delays.
the Hyderabad Metro Phase 2 project is still not approved by the central government. Without this project, the airport corridor, IT corridor and fast-growing suburbs cannot be connected properly. Also, MMTS Phase